नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। Introduction overview of what Ingress is in the context of web development and Kubernetes. वेब विकास और Kubernetes के संदर्भ में Ingress क्या है, इसका संक्षिप्त अवलोकन। The context of web development and Kubernetes, and Ingress is an API object that provides external access to services within the Kubernetes. It acts as a way to manage and control the external traffic to services, allowing for routing, load balancing, and SSL termination. In other words, Ingress provides a set of rules that define how external requests should be handled and directed to the different services within the web development and Kubernetes के संदर्भ में Ingress एक API ऑब्जेक्ट है जो Kubernetes क्लस्टर के भीतर सेवाओं तक बाहरी पहुंच प्रदान करता है। यह सेवाओं के लिए बाहरी ट्रैफिक को प्रबंधित और नियंत्रित करने, रूटिंग, लोड संतुलन और SSL समाप्ति की अनुमति देने के तरीके के रूप में कार्य करता है। दूसरे शब्दों में, इंग्रेस नियमों का एक सेट प्रदान करता है जो परिभाषित करता है कि बाहरी अनुरोधों को क्लस्टर के भीतर विभिन्न सेवाओं के लिए कैसे प्रबंधित और निर्देशित किया जाना चाहिए। Key points about Ingress in the context of web development and Kubernetes. वेब विकास और Kubernetes के संदर्भ में Ingress के बारे में मुख्य रूटिंग एंड लोड बैलेंसिंग। Ingress allows you to define rules for routing external traffic to specific services based on the requested host or URL path. This enables you to distribute incoming requests among different backend services, providing a form of load balance, routing और load balancing. Ingress आपको अनुरोधित होस्ट या URL पथ के आधार पर बाहरी ट्रैफिक को विशिष्ट सेवाओं तक रूट करने के नियमों को परिभाषित करने के अनुमति देता है। यह आपको लोड संतुलन का एक रूप प्रदान करते हुए विभिन्न बैकएंड सेवाओं के बीच आने वाले अनुरोधों को वितरित करने में सक्षम बना। SSL termination. Ingress can be configured to handle SSL termination, decrypting incoming HTTPS traffic and forwarding it to backend services over HTTP. This offloads the burden of SSL description from individual services, simplifying their configuration. SSL समाप्ति को संभालने आने वाले HTTPS ट्रैफिक को डिक्रिप्ट करने और HTTP पर बैकएंड सेवाओं को अग्रेषित करने के लिए इंग्रेस को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। यह व्यक्तिगत सेवाओं के SSL डिस्क्रिप्शन के बोझ को कम करता है, जिससे उनका कॉन्फ़िगरेशन सरल हो जाता है। पाथ बेस्ड routing. You can specify different paths within Ingress resource, allowing you to route requests to different services based on the URL path. This is useful for creating distinct endpoints for various functionalities or microservices. पथ आधारित रूटिंग। आप एक Ingress संसाधन के भीतर अलग अलग पथ निर्दिष्ट कर सकते हैं, जिससे आप URL पथ के आधार पर विभिन्न सेवाओं के लिए अनुरोधों को रूट कर सकते हैं। यह विभिन्न कार्यताओं या माइक्रोसर्विसेज के लिए अलग अलग समापन बिंदु बनाने के लिए उपयोगी है। होस्ट बेस्ड रूटिंग. Ingress enables you to define rules based on the host header of incoming request. This allows you to host multiple services on the same cluster, each accessible via different domain or subdomain. होस्ट आधारित रूटिंग. Ingress आपको आने वाले अनुरोधों के होस्ट हेडर के आधार पर नियमों को परिभाषित करने में सक्षम बनाता है। यह आपको एक ही क्लस्टर पर कई सेवाओं को होस्ट करने की अनुमति देता है, जिनमें से प्रत्येक को एक अलग डोमेन या उप डोमेन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। सेंट्रलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन. Ingress provides a centralized way to manage external access rules, making it easier to configure and update routing policies without modifying individual service configuration. केंद्रीकृत कॉन्फ़िगरेशन. Ingress बाहरी पहुंच नियमों को प्रबंधित करने के लिए एक केंद्रीकृत तरीका प्रदान करता है, जिससे व्यक्तिगत सेवा कॉन्फ़िगरेशन को संशोधित किए बिना रूटिंग नीतियों को कॉन्फ़िगर और अपडेट करना आसान हो जाता है। इंटीग्रेशन विद Ingress कंट्रोलर. Ingress controllers
are responsible for implementing the rules defined in Ingress resources. Popular controllers such as Nginx, Ingress controllers or traffic handle the actual routing and load balancing based on the Ingress specification. Ingress controllers के साथ एकीकरण। Ingress कंट्रोलर Ingress संसाधनों में परिभाषित नियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। लोकप्रिय नियंत्रक जैसे कि इंग्रेस कंट्रोलर या ट्रैफिक इंग्रेस निर्देशों के आधार पर वास्तविक रूटिंग और लोड संतुलन को संभाल। इन समरी, इंग्रेस इन कुबरनेटिस simplifies the management of external access to services by providing a flexible and centralized way to define routing rules. It plays a crucial role in enhancing the scalability, flexibility and security of web application deployed in a Kubernetes environment. संक्षेप में, Kubernetes में प्रवेश रूटिंग नियमों को परिभाषित करने के लिए एक लचीला और केंद्रीकृत तरीका प्रदान करके सेवाओं तक बाहरी पहुंच के प्रबंधन को सरल बनाता है। यह Kubernetes वातावरण में तैनात वेब अनुप्रयोगों की स्केलेबिलिटी, लचीलेपन और सुरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। Importance of managing external access to services in a Kubernetes cluster. Kubernetes cluster में सेवाओं तक बाहरी पहुंच के प्रबंधन का महत्व। Managing external access to services in a Kubernetes cluster is crucial for several reasons, encompassing security, scalability, flexibility, and operational efficiency. Here are some key points highlighting the importance of effectively managing external access. Kubernetes cluster में सेवाओं तक बाहरी पहुंच का प्रबंधन करना कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जिससे सुरक्षा, स्केलेबिलिटी, लचीलापन और परिचालन दक्षता शामिल है। बाहरी पहुंच को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के महत्व पर प्रकाश डालने वाले कुछ प्रमुख बिंदु यहाँ दिए गए हैं। सिक्योरिटी, सुरक्षा, ऑथराइजेशन एंड authentication. Controlling external access ensures that only authorized users and systems can interact with the services. Proper authentication and authorization mechanisms can be enforced at the entry point ingress to the cluster. प्राधिकरण और प्रमाणीकरण बाहरी पहुंच को नियंत्रित करना यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता और सिस्टम ही सेवाओं के साथ बातचीत कर सकते हैं। क्लस्टर में प्रवेश पर उच्च प्रमाणीकरण और प्राधिकरण तंत्र लागू किया जा सकता है। SSL TLS termination, handling SSL TLS termination centrally at the Ingress helps secure communication between external clients and the services, reducing the complexity of managing certificates across individual services. SSL TLS समाप्ति, इंग्रेस पर केंद्रीय रूप से SSL TLS समाप्ति को संभालने से बाहरी ग्राहकों और सेवाओं के बीच सुरक्षित संचार में मदद मिलती है, जिससे व्यक्तिगत सेवाओं में प्रमाण पत्रों के प्रबंधन की जटिलता कम हो जाती है। स्केलेबिलिटी, लोड बैलेंस, बाय मैनेजिंग एक्सटर्नल एक्सेस you can distribute incoming traffic efficiently among multiple instances of service, facilitating load balancing. This is crucial for ensuring that no single instance is overwhelmed with requests, improving overall system scalability. लोड संतुलन, बाहरी पहुंच का प्रबंधन करके आप आने वाले ट्रैफिक को एक सेवा के कई उदाहरणों के बीच कुशलतापूर्वक वितरित कर सकते हैं, जिससे लोड संतुलन की सुविधा मिलती है। यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि कोई भी उदाहरण अनुरोधों से अभिभूत न हो, समग्र सिस्टम स्केलेबिलिटी में सुधार हो। पाथ बेस्ड रूटिंग, Ingress allows you for path-based routing, enabling the creation of distinct endpoints for different functionalities of microservices. This helps in scaling and involving the application architecture over time. पथ आधारित रूटिंग, Ingress पथ आधारित रूटिंग की अनुमति देता है, जो विभिन्न कार्यात्मकताओं या माइक्रो सर्विसेज के लिए अलग अलग समापन बिंदुओं के निर्माण को सक्षम बनाता है। यह समय के
साथ एप्लीकेशन आर्किटेक्चर को स्केल करने के और विकसित करने में मदद कर फ्लेक्सिबिलिटी लचीला होस्ट बेस्ड रूटिंग एक्सटर्नल एक्सेस मैनेजमेंट विद इंग्रेस allows for host based routing enabling the hosting of multiple services of the same cluster each accessible via a different domain or subdomain. This is valuable for supporting multiple applications or tenants within the same infrastructure. होस्ट आधारित रूटिंग इंग्रेस के साथ बाहरी एक्सेस प्रबंधन होस्ट आधारित रूटिंग की अनुमति देता है जो एक ही क्लस्टर पर कई सेवाओं की होस्टिंग को सक्षम बनाता है। प्रत्येक को एक अलग डोमेन या उप डोमेन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। यह एक बुनियादी ढांचे के भीतर कई अनुप्रयोगों का या किराएदारों का समर्थन करने के लिए मूल्यवान है। URL रीराइटिंग एंड रीडायरेक्शन Ingress configuration can be include rules for URL rewriting and redirection, providing flexibility in presenting clean and user-friendly URL to external clients. URL पुनर्लेखन और पुनर्निर्देशन Ingress configuration में URL पुनर्लेखन और पुनर्निर्देशन के नियम शामिल हो सकते हैं जो बाहरी ग्राहकों को स्वच्छ और उपयोगकर्ता के अनुकूल URL प्रस्तुत करने में लचीलापन प्रदान करते हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी परिचालन दक्षता सेंट्रलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन Ingress provides a centralized way to manage external access rules, reducing the need to modify individual service configuration. This centralized approach simplifies operational tasks, making it easier to implement and update routing policy. केंद्रीकृत कॉन्फ़िगरेशन Ingress बाहरी पहुंच नियमों को प्रबंधित करने के लिए एक केंद्रीकृत तरीका प्रदान करता है जिससे व्यक्तिगत सेवाएं कॉन्फ़िगरेशन को संशोधित करने की आवश्यकता कम हो जाती है। यह केंद्रीकृत दृष्टिकोण परिचालन कार्यों को सरल बनाता है जिससे रूटिंग नीतियों को लागू करना और अद्यतन करना आसान हो जाता है। Monitoring and logging managing external access allows for centralized monitoring and logging of traffic entering cluster. This is in troubleshooting, performance optimization and maintain over system में है। निगरानी और लॉगिंग बाहरी पहुंच का प्रबंधन केंद्रीकृत निगरानी और क्लस्टर में प्रवेश करने वाले ट्रैफिक की लॉगिंग की अनुमति देता है। यह समस्या निवारण, प्रदर्शन अनुकूलन और समग्र सिस्टम स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायता करता है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन संसाधन उपयोग रिसोर्स एलोकेशन efficiently managing external access help in allocating resources based on demand. It ensures that resources are distributed appropriately among services, preventing resources bottlenecks and optimizing resource utilization. संसाधन आवंटन बाहरी पहुंच को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने से मांग के आधार पर संसाधनों को आवंटित करने में मदद मिलती है। यह सुनिश्चित करता है कि संसाधनों को सेवाओं के बीच उचित रूप से वितरित किया जाता है, संसाधन बाधाओं को रोका जाता है और संसाधन उपयोग को अनुकूलित किया जाता है। सिंप्लीफाइड सर्विस डिस्कवरी सरलीकृत सेवा खोज सर्विस डिस्कवरी एक्सटर्नल एक्सेस मैनेजमेंट प्रोवाइड्स a structured way of clients to discover and interact with services. It simplifies the process of discovering and connecting to the right service by abstracting away the underlying infrastructure details. सेवा खोज बाहरी पहुंच प्रबंधन ग्राहकों को सेवाओं को खोजने और उनके साथ बातचीत करने के लिए एक संरचित तरीका प्रदान करता है। यह अंतर्निहित बुनियादी ढांचे के विवरणों को हटाकर सही सेवा की खोज और उससे जुड़ने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। Conscious in conclusion, effective management of external access in Kubernetes cluster is fundamental for maintaining a secure, scalable, and flexible application environment. It contributes to operational efficiency, enhances resource utilization, and supports the dynamic and evolving
नेचर ऑफ मॉडर्न एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। स्किल्स में कुबरनेटिस क्लस्टर में बाहरी पहुंच का प्रभावी प्रबंधन एक सुरक्षित, स्केलेबल और लचीले अनुप्रयोगों वातावरण को बनाए रखने के लिए मौलिक है। यह परिचालन दक्षता में योग्यता देता है, संसाधन उपयोग को बढ़ाता है और आधुनिक एप्लीकेशन आर्किटेक्चर की गतिशील और विकसित प्रकृति का समर्थन करता है। इंट्रोडक्शन टू इंग्रेस इन कुबरनेटिस। कुबरनेटिस में प्रवेश का परिचय। एक्सप्लेनेशन ऑफ इंग्रेस एज एन एपीआई ऑब्जेक्ट दैट मैनेजेस external access to services. In Kubernetes, Ingress is an API object designed to manage external access to services within a cluster. It acts as a configurable entry point that allows external users and applications to access services running within the Kubernetes environment. Ingress provides a way to define rules for routing and controlling traffic, enabling the cluster to handle external requests इंटेलिजेंटली। एक एपीआई ऑब्जेक्ट के रूप में इंग्रेस की व्याख्या जो सेवाओं तक बाहरी पहुंच का प्रबंधन करती है। कुबरनेटिस में इंग्रेस एक एपीआई ऑब्जेक्ट है जिसे क्लस्टर के भीतर सेवाओं तक बाहरी पहुंच को प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक कॉन्फ़िगर करने योग्य प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता है जो बाहरी उपयोगकर्ताओं और एप्लीकेशन को कुबरनेटिस वातावरण में चल रही सेवाओं तक पहुंचने की अनुमति देता है। इंग्रेस रूटिंग और ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए नियमों को परिभाषित करने का एक तरीका प्रदान करता है जिससे क्लस्टर बाहरी अनुरोधों को समझदारी से संभालने में सक्षम होता है। रूटिंग एक्सटर्नल ट्रैफिक। बाहरी यातायात को रूट करना। Ingress acts as a layer of abstraction for external access to services. It enables the definition of rules specifying how incoming requests from external resources should be routed to different services within the cluster. Ingress सेवाओं तक बाहरी पहुंच के लिए अमूर्तता एक ही परत के रूप में कार्य करता है। यह नियमों की परिभाषा को निर्दिष्ट करने में सक्षम बनाता है कि बाहरी स्रोतों में से आने वाले अनुरोधों को क्लस्टर के भीतर विभिन्न सेवाओं तक कैसे भेजा जाना चाहिए। HTTP and HTTPS routing. Ingress supports both HTTP and HTTPS protocol, allowing for the configuration for rule based on host name, paths, and other HTTP parameters. This is particularly useful for managing web applications with multiple routes or domains. Ingress HTTP और HTTPS दोनों प्रोटोकॉल का समर्थन करता है जो होस्ट नाम, पथ और अन्य HTTP पैरामीटर के आधार पर नियमों के कॉन्फ़िगरेशन की अनुमति देता है। यह एकाधिक मार्गों या डोमेन वाले वेब अनुप्रयोगों के प्रबंधन के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। होस्ट बेस्ड रूटिंग। One of the key features of Ingress is host-based routing. It allows you to define rules based on the host header in the incoming request. This means you can route traffic for different services based on the host name used in the URL. Ingress के प्रमुख विशेषताओं में से एक होस्ट आधारित रूटिंग है। यह आपको आने वाले अनुरोध में होस्ट हेडर के आधार पर नियमों को परिभाषित करने की अनुमति देता है। इसका मतलब है कि आप URL में इस्तेमाल किए गए होस्ट नाम के आधार पर ट्रैफिक को विभिन्न सेवाओं पर रूट कर सकते हैं। पाथ बेस्ड रूटिंग। In addition to the host based routing, Ingress supports path based routing. This enables the definition of rules based on the URL path of the incoming request, allowing for the routing of the request to the different services based on the specific path. होस्ट आधारित रूटिंग के अलावा Ingress पथ आधारित रूटिंग का समर्थन करता है। यह आने वाले अनुरोध के URL पथ के आधार पर नियमों की परिभाषा को सक्षम बनाता है जिससे विशिष्ट पथों के आधार पर विभिन्न सेवाओं के लिए अनुरोधों को रूट करने की अनुमति मिलती है। Load balancing, भार संतुलन. Ingress can be configured to provide load balancing for services. This ensures that incoming traffic is distributed evenly among multiple instances of service, improving the overall availability and scaling of the application. सेवाओं के लिए लोड संतुलन प्रदान करने के लिए Ingress को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि आने वाले ट्रैफिक किसी सेवा के कई उदाहरणों के बीच समान रूप से वितरित किया जाता है जिससे एप्लीकेशन की समग्र उपलब्धता और स्केलेबिलिटी में सुधार होता है। SSL termination. SSL समाप्त. Ingress can handle SSL termination, meaning it
It can decrypt HTTPS traffic at the ingress level before forwarding it to the backend services. This simplifies the configuration of SSL certificates for services running within the cluster. Ingress SSL समाप्ति को संभाल सकता है, जिसका अर्थ है कि एक बैकएंड सेवाओं को अग्रेषित करने के से पहले इंग्रेशन स्तर पर HTTPS ट्रैफिक को डिक्रिप्ट कर सकता है। यह क्लस्टर के भीतर चल रही सेवाएं के लिए SSL प्रमाण पत्रों के कॉन्फ़िगरेशन को सरल बनाता है। इंग्रेस कंट्रोलर प्रवेश नियंत्रक। While Ingress defines the rules, the actual implementation of these rules is handled by Ingress controller. Ingress controller are components that run within the cluster and are responsible for configuring external access based on the Ingress rules. जबकि Ingress नियमों को परिभाषित करता है, इन नियमों का वास्तविक कार्यान्वयन Ingress नियंत्रकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इंग्रेस कंट्रोलर से घटक जैसे या क्लस्टर्स के भीतर चलते हैं और इन इंग्रेस नियमों के आधार पर बाहरी पहुंच को कॉन्फ़िगर करने के लिए जिम्मेदार हैं। Annotation. Ingress supports annotations, which are key value pairs that can be added to the Ingress resource to provide additional configurations options. Annotation can be used to customize the behavior of the Ingress controller, extend the functionality of Ingress. Ingress annotation का समर्थन करता है जो कुंजी मूल्य जोड़े हैं जिन्हें अतिरिक्त कॉन्फ़िगरेशन विकल्प प्रदान करने हैं के लिए Ingress संसाधन में जोड़ा जा सकता है। एनोटेशन का उपयोग Ingress नियंत्रकों के व्यवहार को अनुकूलित करने के और Ingress की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। Centralized configuration, केंद्रीकृत विन्यास। Ingress provides a centralized and declarative way to manage external access rules. This simplifies the configuration and management of routing policies compared to configuring individual services for external access. Ingress बाहरी पहुंच नियमों को संबंधित करने के लिए एक केंद्रीकृत और घोषणात्मक तरीका प्रदान करता है। यह बाहरी पहुंच के लिए व्यक्तिगत सेवाओं को कॉन्फ़िगर करने की तुलना में रूटिंग नीतियों के कॉन्फ़िगरेशन और प्रबंधन को सरल बनाता है। इन समरी, Ingress in Kubernetes serves as a powerful tool for managing external access to services by providing a flexible and centralized way to define routing rules. It abstracts weight and complexity of managing external access at the service level and allows for the efficient and controlled handling of external traffic to applications running within the Kubernetes cluster. संक्षेप में, Kubernetes में Ingress रूटिंग नियमों को परिभाषित करने के लिए एक लचीला और केंद्रीकृत तरीका प्रदान करके सेवाओं तक बाहरी पहुंच के प्रबंधन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है। यह सेवा स्तर पर बाहरी पहुंच को प्रबंधित करने की जटिलता को दूर करता है और कुबरनीटीज क्लस्टर के भीतर चल रहे अनुप्रयोगों के लिए बाहरी ट्रैफिक के कुशल और नियंत्रित प्रबंधन की अनुमति देता है। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग Ingress फॉर रूटिंग एंड लोड बैलेंसिंग। रूटिंग और लोड संतुलन के लिए Ingress का उपयोग करने के लाभ। Using Ingress for routing and load balancing in a Kubernetes environment offers several benefits that contributes the efficiency, scalability, and manageability of your application. Here are some key values advantages. Kubernetes वातावरण में रूटिंग और लोड संतुलन के लिए Ingress का उपयोग करने से कई लाभ मिलते हैं जो आपके अनुप्रयोगों की दक्षता, स्केलेबिलिटी और प्रबंधनीयता में योगदान करते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख लाभ दिए गए हैं। सेंट्रलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन, केंद्रीकृत विन्यास। Ingress provides a centralized and declarative way to manage external access rules. This means you can define routing and load balancing configuration in a single Ingress resource, simplifying the management of external access policies. Kubernetes Ingress बाहरी पहुंच नियमों को प्रबंधित करने के लिए एक केंद्रीकृत और घोषणात्मक तरीका प्रदान करता है। इसका मतलब है कि आप बाहरी पहुंच नीतियों के प्रबंधन को सरल बनाते हुए एक Ingress संसाधन में रूटिंग और लोड संतुलन कॉन्फ़िगरेशन को परिभाषित कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी विद द पाथ बेस्ड ऑन द होस्ट
होस्ट बेस्ड रूटिंग, पथ आधारित और होस्ट आधारित रूटिंग के साथ लचीलापन। Ingress allows for path-based and host-based routing. This flexibility enables you to route traffic to different services based on the URL path or host name, making it easier to create distinct endpoints for various functionalities of microservices within your application. Ingress आधारित और होस्ट आधारित रूटिंग की अनुमति देता है। यह लचीलापन आपको URL पथ या होस्ट नाम के आधार पर ट्रैफिक को विभिन्न सेवाओं तक रूट करने में सक्षम बनाता है, जिससे आप एप्लीकेशन के भीतर विभिन्न कार्यात्मकताओं या माइक्रो सर्विसेज के लिए अलग अलग एंड पॉइंट बनाना आसान हो जाता है। सिंप्लीफाइड SSL TLS टर्मिनेशन, सरलीकृत SSL TLS समाप्त। Ingress कैन हैंडल SSL TLS termination, meaning it can decrypt HTTPS traffic before forwarding it to backend services. This simplifies the management of SSL certificates and ensures secure communication with external clients. Ingress SSL TLS समाप्ति को संभाल सकता है, जिसका अर्थ है कि यह HTTPS ट्रैफिक को बैकएंड सेवाओं पर अग्रेषित करने के लिए डिक्रिप्ट कर सकता है। यह SSL प्रमाण पत्रों के प्रबंधन को सरल बनाता है और बाहरी ग्राहकों के साथ सुरक्षित संचार सुनिश्चित करता है। लोड बैलेंसिंग अक्रॉस सर्विस इंस्टांसेस, सभी सेवा उदाहरणों में लोड संतुलन। Ingress provides built-in load balancing capability, distributing incoming traffic across multiple instances of a service. This ensures that the load is evenly distributed, improving the availability and performance of your application. Ingress एक सेवा के कई उदाहरणों में आने वाले ट्रैफिक को वितरित करते हुए अंतर्निहित लोड संतुलन क्षमताएं प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि लोड समान रूप से वितरित है, जिससे आपके एप्लीकेशन की उपलब्धता और प्रदर्शन में सुधार होता है। स्केलेबिलिटी, load balancing through Ingress supports the scalability of your application. As you scale the number of replicas or instances of a service, Ingress automatically adjusts the load balancing to distribute traffic efficiently among the available instances. Ingress के माध्यम से लोड संतुलन आपके एप्लीकेशन की स्केलेबिलिटी का समर्थन करता है, जैसे कि आप किसी सेवा की प्रकृतियों का उदाहरणों की संख्या मापते हैं। Ingress उपलब्ध उदाहरणों के बीच ट्रैफिक को प्रभावी ढंग से वितरित करने के लिए लोड संतुलन का स्वचालित रूप से समायोजित करता है। डायनामिक स्केलिंग एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, गतिशील स्केलिंग और संसाधन उपयोग। Ingress works seamlessly with dynamic scaling solution in Kubernetes. As the number of pods or replicas of a service changes dynamically, Ingress adapts to the changes, optimizing resource utilization and ensuring efficient scaling. Ingress Kubernetes में गतिशील स्केलिंग संसाधनों के साथ निर्बाध रूप से काम करता है। जैसे जैसे किसी सेवा के पॉड्स या प्रकृति की संख्या गतिशील रूप से बदलती है, इसके Ingress परिवर्तन को अपनाता है, संसाधन उपयोग को अनुकूलित करता है और कुशल स्केलिंग सुनिश्चित करता है। एफिशिएंट स्केलिंग ऑफ एक्सटर्नल ट्रैफिक, बाहरी यातायात का कुशल संचालन। Ingress controllers efficiently handle incoming external traffic, offloading the complexity of traffic management from individual services. This allows services to focus on their core functionality without the need to implement intricate routing and load balancing logic. Ingress कंट्रोलर व्यक्तिगत सेवाओं से ट्रैफिक प्रबंधन की जटिलता को दूर करते हुए आने वाले बाहरी ट्रैफिक को कुशलतापूर्वक संभालते हैं। यह सेवाओं को जटिल रूटिंग और लोड संतुलन तर्क को लागू करने की आवश्यकता के बिना उनकी मुख्य कार्य क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। Easy configuration updates, आसान कॉन्फ़िगरेशन अपडेट। Ingress supports dynamic configuration updates. You can modify Ingress resources to update routing rules, add or remove backend services, or adjust load balancing setup without disrupting the overall application. Ingress dynamic configuration update का समर्थन करता है। आप रूटिंग नियमों को अपडेट करने
बैकएंड सेवाओं को जोड़ने या हटाने या समग्र एप्लीकेशन को बाधित किए बिना लोड संतुलन सेटिंग को समायोजित करने के लिए इंग्रेस संसाधनों को संशोधित कर सकते हैं। इंटीग्रेशन एंड इंग्रेस कंट्रोलर, प्रवेश नियंत्रकों के साथ एकीकरण। Ingress works in conjunction with Ingress controllers, which are responsible for implementing the defined rules. The use of controller allows for the integration of different load balancing algorithms, health checks, and other features to enhance the efficiency of traffic distribution. Ingress नियंत्रकों के साथ मिलकर काम करता है जो परिभाषित नियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। नियंत्रकों का उपयोग यातायात वितरण की दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न लोड संतुलन एल्गोरिदम, स्वास्थ्य जांच और अन्य सुविधाओं के एकीकरण की अनुमति देता है। इनहैंस सिक्योरिटी विद SSL पास थ्रू के साथ उन्नत सुरक्षा। Ingress can configure for SSL pass through where the SSL TLS termination happens at the backend service instead of at the Ingress level. This provides additional security for application that requires end-to-end decryption. Ingress को SSL pass through के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है जहां SSL TLS समाप्ति Ingress स्तर के बजाय बैकएंड सेवा पर होती है। यह उन अनुप्रयोगों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें एंड-टू-एंड इंक्रिप्शन की आवश्यकता होती है। मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स, निगरानी और विश्लेषण। Ingress controller often come with monitoring and analytics features. This allows you to gain insight into the performance and health of your application, making it easier to identify and address potential issues. Ingress controller अक्सर मॉनिटरिंग और एनालिटिक्स सुविधा के साथ आता है। यह आपका अपने एप्लीकेशन के प्रदर्शन और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे संभावित मुद्दों की पहचान करना और उनका समाधान करना आसान हो जाता है। In conclusion, using Ingress for routing and load balancing in Kubernetes provides a robust and flexibility solution for managing external access to your services. It streamlines configuration, enhances scalability, and contributes to the overall reliability and performance of your containerized applications. अंत में Kubernetes में रूटिंग और लोड संतुलन के लिए Ingress का उपयोग आपकी सेवाओं तक बाहरी पहुंच के प्रबंधन के लिए एक मजबूत और लचीला समाधान प्रदान करता है। यह कॉन्फ़िगरेशन जो सुव्यवस्थित करता है, स्केलेबिलिटी बढ़ाता है और आपके कंटेनरीकृत अनुप्रयोगों की समग्र विश्वसनीयता को प्रदर्शन में योगदान देता है। प्रीरिक्विजिटीज, पूर्व आवश्यकताएं। ओवरव्यू ऑफ प्रीरिक्विजिटीज फॉर क्रिएटिंग एन इंग्रेस बनाने के लिए आवश्यक शर्तों का अवलोकन। Before creating an ingress in Kubernetes, there are several prerequisites that need to be in place to ensure a smooth and successful configuration. Here is an overview of the key prerequisites. Kubernetes में Ingress बनाने से पहले एक सुचारू और सफल कॉन्फ़िगरेशन सुनिश्चित करने के लिए कई पूर्वापेक्षाएं होनी चाहिए। यहाँ प्रमुख शर्तों का अवलोकन दिया गया है। Kubernetes Cluster. Kubernetes Cluster. Ensure you have a running and accessible Kubernetes cluster. This could be a local development cluster, example Minikube, or a production grade cluster, example managed Kubernetes services like Google Kubernetes Engine, Amazon EKS, or Azure Kubernetes services. सुनिश्चित करें कि आपके पास एक चालू और सुलभ कुबरनीटीज क्लस्टर है। यह एक स्थानीय विकास क्लस्टर, उदाहरण के लिए मिनीक्यूब या कोई दूसरा, या एक उत्पादन ग्रेड क्लस्टर, उदाहरण के लिए गूगल कुबरनीटीज इंजन, अमेजॉन EKS या अजूरे कुबरनीटीज सेवा जैसी प्रबंधित कुबरनीटीज सेवाएं हो सकता है। kubectl configuration. Kubectl configuration have kubectl configured and pointing to the correct Kubernetes cluster. This is the command line tool used for interacting
with the Kubernetes API server. kubectl को कॉन्फ़िगर करें और सही Kubernetes क्लस्टर की ओर इंगित करें। यह Kubernetes API सर्वर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए उपयोग किया जाने वाला कमांड लाइन टूल है। bash kubectl config use context your cluster name namespace नाम स्थान वैकल्पिक decide whether you want to deploy your Ingress resource in a specific namespace. If you don't specify a namespace, it will be created in the default namespace. तय करें कि क्या आप अपने Ingress संसाधन को किसी विशिष्ट स्नैप नेम स्पेस में तैनात करना चाहते हैं। यदि आप कोई इस नाम स्थान निर्दिष्ट नहीं करते हैं तो यह डिफ़ॉल्ट नाम स्थान में बनाया जाएगा। Ingress controller प्रवेश नियंत्रक ensures that an Ingress controller is installed in your cluster. Ingress controllers are responsible for implementing the rules defined in Ingress resource. Popular controllers include Nginx Ingress controller, traffic, HA proxy, Ingress etc. तो सुनिश्चित करें कि आप क्लस्टर में एक Ingress कंट्रोलर स्थापित है। Ingress नियंत्रक Ingress संसाधनों में परिभाषित नियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। लोकप्रिय नियंत्रक में Nginx Ingress कंट्रोलर, ट्रैफिक, proxy Ingress आदि शामिल है। Installation of an Ingress controller varies depending on the chosen controller. For example, you might use Helm to install the Nginx Ingress controller. Ingress कंट्रोलर की स्थापना चुने गए कंट्रोलर के आधार पर भिन्न होती है। उदाहरण के लिए आप Nginx कंट्रोलर को स्थापित करने के लिए Helm का उपयोग कर सकते हैं। bash help repo at Ingress Nginx URL kubernetes.github.io help install my-ingress-controller ingress-nginx/ingress-nginx service seva ensures that the backend service you want to expose via Ingress are deployed and running within your cluster. These services could be applications, microservices और other services. सुनिश्चित करें कि जिन बैकएंड सेवाओं को आप Ingress के माध्यम से उजागर करना चाहते हैं वे आपके क्लस्टर के भीतर तैनात और चल रही है। ये सेवाएं एप्लीकेशन, माइक्रो सर्विसेज या अन्य संसाधन हो सकते हैं। सर्विस पोर्ट्स एंड एंड पॉइंट्स, सेवा बंदरगाह और समापन बिंदु। वेरीफाई दैट योर बैकएंड सर्विसेज हैव डिफाइंड एन एक्सपोर्ट पोर्ट। In the Ingress configuration, you will specify the service name and end port to route traffic to. सत्यापित करें कि आपकी बैकएंड सेवाओं ने पोर्ट परिभाषित और उजागर किए हैं। Ingress कॉन्फ़िगरेशन में आप ट्रैफिक को रूट करने के लिए सेवा का नाम और पोर्ट निर्दिष्ट करेंगे। DNS कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शनल, DNS कॉन्फ़िगरेशन वैकल्पिक। If you plan to use host-based routing in your Ingress rules, make sure that the domain names you intend to use are configured and point to the external IP address or load balancer associated with your Ingress controller. यदि आप अपने Ingress नियमों को होस्ट आधारित रूटिंग का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि जिन डोमेन नामों का उपयोग करना चाहते हैं वे कॉन्फ़िगर किए गए हैं और आपके Ingress कंट्रोलर से जुड़े बाहरी IP पते या लोड बैलेंसर को इंगित करते हैं। SSL सर्टिफिकेट्स ऑप्शनल, SSL प्रमाण पत्र वैकल्पिक। If your Ingress configuration includes HTTPS routes, ensure that the required SSL certificates are available.
These certificates can be obtained from a certificate authority CA or managed using tools like Let's Encrypt. यदि आपके Ingress कॉन्फ़िगरेशन में HTTPS रूट शामिल है तो सुनिश्चित करें कि आवश्यक SSL प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं। ये प्रमाण पत्र आपको प्रमाणीकरण CA से प्राप्त किए जा सकते हैं या लेट्स क्रिएट जैसे टूल का उपयोग करके प्रबंधित किए जा सकते हैं। नोट, इन ए प्रोडक्शन इन्वायरमेंट इट्स हाईली रिकमेंडेड to use the valid SSL certificate to secure communication. Note: उत्पादन परिवेश में सुरक्षित संचार के लिए वैध SSL प्रमाण पत्रों का उपयोग करने की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। परमिशन अनुमतियाँ ensures that the user or service account used to create the Ingress resource has the necessary permission to manage Ingress resource within the target namespace. सुनिश्चित करें कि Ingress संसाधन बनाने के लिए उपयोग किए गए उपयोगकर्ता या सेवा खाते के पास लक्ष्य नाम स्थान के भीतर Ingress संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए आवश्यक अनुमतियां हैं। एग्जाम्पल RBAC रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल कॉन्फ़िगरेशन। उदाहरण RBAC भूमिका आधारित अभिगम नियंत्रण कॉन्फ़िगरेशन। YAML फाइल API वर्जन rebag.authorization.k8s.io/v1 kind cluster role metadata name Ingress controller rules API groups networking.k8s.io resources Ingress verbs get list watch create update patch delete API version rebag.authorization.k8s.io/v1 kind cluster role binding metadata name Ingress controller binding role ref API group rebag.authorization.k8s.io kind cluster role name Ingress controller subject kind service account name Ingress controller service account namespace. Once these prerequisites are in a place, you can proceed with creating Ingress resources to manage external access to your services within the Kubernetes cluster. एक बार ये शर्तें पूरी तरह हो जाने के बाद आप कुबरनेटिस क्लस्टर के भीतर अपनी सेवाओं तक बाहरी पहुंच को प्रबंधित करने के लिए इंग्रेस संसाधन बनाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इंश्योर रनिंग कुबरनेटिस क्लस्टर एक चालू कुबरनेटिस क्लस्टर सुनिश्चित करें। इंश्योरिंग ए रनिंग कुबरनेटिस क्लस्टर इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ स्टेप्स एंड अप्रोच माइट डिफर डिपेंडिंग ऑन योर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। Below, I provide a general guide to ensure that you have a functionality Kubernetes cluster. The steps may vary slightly based on whether you are setting up a local development cluster or using a cloud-based Kubernetes service. यह सुनिश्चित करने के लिए चल रहे Kubernetes cluster में चरणों की एक श्रृंखला शामिल है और दृष्टिकोण आपके विशिष्ट वातावरण के आधार पर भिन्न हो सकता है। नीचे यह सुनिश्चित करने के लिए एक सामान्य मार्गदर्शिका प्रदान करता हूं कि आपके पास एक कार्यात्मक कुबरनेटिस क्लस्टर है। आप स्थानीय विकास क्लस्टर स्थापित कर रहे हैं या क्लाउड आधारित कुबरनेटिस सेवा का उपयोग कर रहे हैं। इसके आधार पर चरण थोड़े भिन्न हो सकते हैं। फॉर लोकल डेवलपमेंट क्लस्टर यूजिंग मिनीक्यूब, स्थानीय विकास क्लस्टर के लिए मिनीक्यूब का उपयोग करके इंस्टॉल मिनीक्यूब स्थापित करें। इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिनीक्यूब ऑन योर लोकल मशीन बाय फॉलोइंग द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, यदि आपने अपने से पहले से ही नहीं किया है, यदि आपने पहले से ही नहीं इंस्टॉल किया है तो आधारीकृत दस्तावेज का पालन करके अपने स्थानीय मशीन पर मिनीक्यूब स्थापित करें। स्टार्ट मिनीक्यूब, ओपन ए टर्मिनल एंड रन द फॉलोइंग कमांड टू स्टार्ट मिनीक्यूब।
एक टर्मिनल खोजें और मिनीक्यूब शुरू करने के लिए निम्नलिखित कमांड चलाएं। बैश मिनीक्यूब स्टार्ट। दिस कमांड विल डाउनलोड द नेसेसरी Kubernetes components and start a local cluster। यह कमांड आवश्यक Kubernetes घटकों को डाउनलोड करेगा और एक स्थानीय क्लस्टर शुरू करेगा। वेरीफाई क्लस्टर स्टेटस। आफ्टर मिनीक्यूब हैज स्टार्टेड, वेरीफाई द स्टेटस ऑफ योर क्लस्टर। मिनीक्यूब शुरू होने के बाद अपने क्लस्टर की स्थिति सत्यापित करें। kubectl cluster info। दिस शुड शो यू इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लस्टर कंपोनेंट्स। इससे आपको क्लस्टर घटकों के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। फॉर ए क्लाउड बेस्ड Kubernetes क्लस्टर एग्जाम्पल गूगल Kubernetes इंजन GKE। क्लाउड आधारित Kubernetes क्लस्टर के लिए उदाहरण के लिए गूगल Kubernetes इंजन GKE। क्रिएट ए क्लाउड अकाउंट इफ नेसेसरी। एक क्लाउड खाता बनाएं यदि आवश्यक हो। If you are using a cloud-based Kubernetes service, ensure that you have an account with the respective cloud provider. Example: Google Cloud Platform, AWS, Azure। यदि आप क्लाउड आधारित Kubernetes सेवा का उपयोग कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके पास संबंधित क्लाउड प्रदाता उपकरण के लिए Google Cloud Platform, AWS, Azure के साथ एक खाता है। इंस्टॉल kubectl स्थापित करें। इंस्टॉल kubectl, द कमांड लाइन टूल फॉर इंटरैक्टिंग विद a Kubernetes cluster। यू कैन फाइंड इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन इन द फॉलोइंग लिंक। Kubernetes क्लस्टर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए कमांड लाइन टूल kubectl इंस्टॉल करें। आप इंस्टॉलेशन निर्देश यहाँ से पा सकते हैं। सेटअप ए Kubernetes क्लस्टर। Kubernetes क्लस्टर को स्थापित करें। क्रिएट ए Kubernetes क्लस्टर यूजिंग द क्लाउड प्रोवाइडर्स प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, टू क्रिएट ए क्लस्टर और Google Kubernetes इंजन GKE, यू कैन यूज द फॉलोइंग gcloud कमांड। क्लाउड प्रदाता के प्लेटफॉर्म का उपयोग करके Kubernetes क्लस्टर बनाएं। उदाहरण के लिए Google Kubernetes इंजन GKE पर एक क्लस्टर बनाने के लिए आप निम्नलिखित gcloud कमांड का उपयोग कर सकते हैं। बैश gcloud कंटेनर क्लस्टर। क्रिएट क्लस्टर डैश नेम num dash nodes equal to 3, zone equal to your preference zone। adjust the parameter based on your preference and requirements। अपनी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के आधार पर मापदंडों को समायोजित करें। कॉन्फ़िगर kubectl कॉन्फ़िगर करें। कॉन्फ़िगर kubectl टू यूज द क्रेडेंशियल फॉर योर न्यूली क्रिएटेड क्लस्टर। नवनिर्मित क्लस्टर के लिए क्रेडेंशियल का उपयोग करने के लिए kubectl कॉन्फ़िगर करें। बैश gcloud कंटेनर क्लस्टर गेट credential cluster name zone equal to your preferred zone। This sets the necessary credential and context for kubectl to communicate with your cluster। यह आपके क्लस्टर के साथ संचार करने के लिए kubectl के लिए आवश्यक क्रेडेंशियल और संदर्भ सेट करता है। वेरीफाई क्लस्टर स्टेटस। क्लस्टर स्थिति सत्यापित करें। वेरीफाई द स्टेटस ऑफ योर क्लस्टर। अपने क्लस्टर की स्थिति सत्यापित करें। बैश kubectl cluster info। This should show you information about the cluster components। इससे आपको क्लस्टर घटकों के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। जनरल वेरिफिकेशन स्टेप्स। सामान्य सत्यापन चरण। Regardless of the environment, you can perform the following verification step। परिवेश की परवाह किए बिना आप निम्नलिखित सत्यापन चरण निष्पादित कर सकते हैं। Nodes bash kubectl get node। This should show how the list of nodes in your cluster। यह आपको आपके क्लस्टर के नोड्स की सूची दिखाता है। Pods bash kubectl get pods dash dash all namespaces। This should display the list of pods running in your cluster। यह आपके क्लस्टर में चल रहे पॉड्स की सूची प्रदर्शित करेगा। सर्विसेज सेवाएं बैश kubectl get services all namespace।
This should show how you the list of services in your cluster. This should show you the list of services in your cluster. इससे आपको अपने क्लस्टर में सेवाओं की सूची दिखनी चाहिए. By following this command, you can ensure that your Kubernetes cluster is up and running, allowing you to proceed with deploying and managing application within the cluster. इन चरणों का पालन करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका Kubernetes क्लस्टर चालू है और चल रहा है, जिससे आप क्लस्टर के भीतर अनुप्रयोगों को तैनात करने और प्रबंधित करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं. Necessary permission for managing Ingress resources. प्रवेश संसाधनों के प्रबंधन के लिए आवश्यक अनुमतियां. To manage Ingress resources in a Kubernetes cluster, you need the appropriate permission, which are typically managed through role-based access control or RBAC. RBAC allows you to define rules and role binding to grant specific permission to the user or services account. Here is an example. RBAC RBAC configuration that provides the necessary permission for managing Ingress resources. Kubernetes क्लस्टर में Ingress संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए आपको उपयुक्त अनुमतियों की आवश्यकता होती है, जिन्हें आमतौर पर रोल आधारित एक्सेस कंट्रोल RBAC के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है. RBAC आपको उपयोगकर्ताओं या सेवा खातों को विशिष्ट अनुमतियां प्रदान करने के लिए भूमिका और भूमिका बाइंडिंग को प्रदर्शित करने के लिए अनुमति देता है. यह एक उदाहरण RBAC कॉन्फ़िगरेशन है जो Ingress संसाधनों के प्रबंधन के लिए आवश्यक अनुमतियां प्रदान करता है. रोल डेफिनेशन. क्लस्टर रोल. भूमिका परिभाषा. क्लस्टर भूमिका. YAML फाइल. API वर्जन rbac.authorization.k8s.io/v1. Kind cluster role metadata name Ingress manager rules API group networking.k8s.io. Resources Ingress get list watch create update patch list delete. In this example, the cluster role named Ingress Manager is defined with the following permissions. Get. Retrieve details about Ingress resources. List Ingress resources. Watch the changes to the Ingress resources. Create new Ingress resources. Update existing Ingress resources. Patch. Apply changes to Ingress resources. Delete Ingress resources. Role binding. Once the cluster role is defined, you need to create a cluster role binding to associate this role with a user or service account. इस उदाहरण में Ingress Manager नामक कंट्रोलर रोल क्लस्टर रोल को निम्नलिखित अनुमतियों के साथ परिभाषित किया गया है. YAML file. API version rbac.authorization.k8s.io/v1 cluster kind cluster role binding metadata name Ingress manager binding subjects kind user name your username replace with your Kubernetes username API group rbac.authorization.k8s.io role ref kind cluster role name Ingress manager API group rbac.authorization.k8s.io. In the example above, subjects, you can replace your subject name with your actual Kubernetes username. Alternatively, you can use system service account namespace service account name if you want to grant permission to a service account. विषय आपका उपयोगकर्ता नाम जो अपने वास्तविक Kubernetes उपयोगकर्ता नाम से बदल सकते हैं. वैकल्पिक रूप से यदि आप किसी सेवा खाते को अनुमति देना चाहते हैं तो आप सिस्टम सर्विस अकाउंट नेम स्पेस सर्विस अकाउंट नेम का उपयोग कर सकते हैं. रोल रेफ स्पेसिफाई द रेफरेंस टू द क्लस्टर रोल नेम्ड इंग्रेस मैनेजर. रोल रेफ इंग्रेस मैनेजर नामक क्लस्टर रोल का संदर्भ निर्दिष्ट करता है. अप्लाई द RBAC कॉन्फ़िगरेशन. RBAC कॉन्फ़िगरेशन लागू करना.
Save this YAML configuration in separate files, example ingressrole.yaml and ingressrolebinding.yaml, and apply them to your Kubernetes cluster using kubectl. In YAML configuration को अलग अलग फाइलों में सहेजें, उदाहरण के लिए इंग्रेस रोल YAML और इंग्रेस रोल बाइंडिंग YAML, और उन्हें kubectl का उपयोग करके अपने Kubernetes cluster पर लागू करें. Bash kubectl apply -f ingress role.yml, kubectl apply -f ingress role-binding.yml. After applying this configuration, the specified user or service account will have the necessary permissions to manage Ingress resources within the cluster. Adjust the RBAC configuration based on your specific requirement and security policies. इन कॉन्फ़िगरेशन को लागू करने के बाद निर्दिष्ट उपयोगकर्ता का सेवा खाते के पास क्लस्टर के भीतर इंग्रेस संसाधनों को प्रबंधित करने की आवश्यक अनुमतियां होंगी. अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को सुरक्षा नीतियों के आधार पर RBAC कॉन्फ़िगरेशन को समायोजित करें. इंग्रेस कंपोनेंट